Law, NLIU, Bhopal. Dr. Sushma Sharma obtained her LLM and PhD from Barkatullah University, Bhopal, with beginning her law career in 2001 with Madhya Pradesh Human Rights Commission as research officer. She has been teaching as an associate professor of constitutional law and administrative law, NLIU Bhopal, since 2016. She is also an active participant in the corporate life of NLIU. Dr. Sushma Sharma has contributed to educational innovation, designing new curricula and courses, technology-mediated teaching learning processes. She has been presenting papers at several national, international conferences and journals. She has also written many chapters in various law books. She has authored more than 10 law books, which include some famous ones like Administrative Justice System in India, Doctrine of Administrative Law, and many more. The Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis appointed her as a member of a consultative group in January 2021. She has contributed as the subject expert of constitutional law broadcast by Gyanvani FM channel of IGNOU. She is also a regular resource person to NCERT and RCVP Naruna, Academy of Administration Bhopal, and Doordarshan. Her insights will surely enrich our understanding of the intricate relationship between constitution and traditional knowledge. I express my gratitude. I would like to invite Dr. Rajni Ranjan Singh Makwana, Head and Associate Professor, Center of AI, MITS DU, to please come forward and present a floral bouquet to Dr. Sushma Sharma. Humbly, I again welcome respected ma'am from this MITS family to taking out the valuable time. I cordially invite respected ma'am to deliver the deliverance on the topic Artificial Intelligence and Right to Life in Constitution of India. चेंज कर सकते हैं जी, ये कीबोर्ड है, अपन स्पेस से कर सकते हैं, इनसे आगे पीछे कर सकते हैं। ओके I expect I'm supposed to be bilingually deliver the lecture. Thank you so much. Thank you for inviting me at this forum. It is my pleasure to interact with the engineering students. अपने करियर में मैंने बहुत से लोगों से इंटरेक्ट किया है, जिसमें ज़्यादातर लॉ से रिलेटेड थे, जजेस, पुलिस वाले, होने वाले जजेस, होने वाले वकील, जो कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। आज जो आपके इंस्टीट्यूशन ने मुझे टॉपिक दिए हैं, उन्होंने दे हैव गिवन द प्रिविलेज टू मी टू चूज द टॉपिक्स। तो आपके इंस्टीट्यूशन के नज़रिए को देखते हुए मुझे ये लगा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड राइट टू लाइफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर कुछ अपने ख्याल आपके साथ मैं शेयर करूंगी। बिफोर आई बिगिन, मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज लॉ के बारे में देना चाहती हूँ। आपके प्रोफेसर से बात करके मैं मुखातिब हुई हूँ कि आपको लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। कीपिंग दैट इन माइंड, आई विल बिगिन विद द मीनिंग ऑफ द टर्म लॉ। लॉ क्या है? विधि। कहते हैं ना, विधि का विधान। जो कुछ आज हो रहा है तो सब विधि का विधान है, ईश्वर का प्रारब्ध है। तो विधान का मतलब होता है नियम। लॉ मीन्स नियम, एंड लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉजिक, इसलिए लॉ को एक साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो विधान है वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि नेचुरल लॉ, सबसे पुराना लॉ, जैसे कि धरती सूर्य के आसपास घूमती है, ये एक लॉ है। सूरज सुबह उगता है, शाम को अस्त होता है, ये एक नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है। जो जन्मता है वो मरता है, ये भी एक नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है। तो सबसे पुराना जो लॉ है वो नेचुरल लॉ है, और इसके बाद में इसका एक थियोलॉजिकल वर्जन आया, जिसको कि हम धार्मिक विधियां या धर्म संबंधी विधियां कहते हैं, जिसमें पाप और पुण्य की अवधारणा आई। यहाँ क्राइम की अवधारणा नहीं थी, इस समय अपराध वाली बात नहीं थी, इस समय अपराध नहीं होता था, पाप होता था, या पुण्य की अवधारणा होती थी। और पाप और पुण्य के बेस पर हम स्वर्ग या नरक में जाते थे, जेल में नहीं जाते थे, ना हमें फाइन देना होता था। पाप और पाप करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, नरक की आग में झुलसेंगे, आरे से काटे जाएंगे, तेल में तले जाएंगे, दोजख में जाएंगे।
और अगर अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना, अच्छा जन्म होगा। तो ये है धार्मिक विधि, और इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी है उसको बताने के लिए तरह तरह के वेद लिखे गए, तरह तरह के धार्मिक टेक्स्ट लिखे गए। कुछ को कहा जाता है कि ईश्वर ने खुद बोले और हमने लिखे, कुछ ईश्वर के इंडिकेशन पे हमने लिखे। हमें जीवन जीने का तरीका, विधि, नियम बताया गया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी फिलॉसफीज हुई, बहुत सारे थिंकर्स हुए, सोशलॉजिकल थिंकर्स हुए। उन्होंने कहा, जैसे अभी आपने सोशलॉजिस्ट को सुना अपने सामने, कि विधि क्या है, सोशल इंजीनियरिंग का एक तरीका है। आप लोग इंजीनियर्स हो, इंजीनियर्स का क्या काम होता है? ये मशीन बिगड़ जाए तो इसे खोल देंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे जिससे इसके सारे पुर्जे स्मूथली चले, ऑयलिंग करेंगे, ग्रीस लगाएंगे, प्रॉपरली चलाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग लॉ, जो रॉस्को पाउंड है सोशलॉजिकल थिंकर, कहते हैं लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग। लॉ का पर्पस क्या है, विधि का पर्पस क्या है, कानून का पर्पस क्या है? सोशल इंजीनियरिंग है, सामाजिक इंजीनियरिंग है। हम सब समाज के पुर्जे हैं, कोई टीचर है, कोई कुछ और है, कोई किसान है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है। आपस में फ्रिक्शन है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। उनको स्मूथली चलाने के लिए जो है विधि बनाना जरूरी है, अपने अपने लिमिट और दायरे निश्चित कर देना जरूरी है। तो सोसाइटी के फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना और उसको स्मूथली चलाना, मैक्सिमम आउटपुट लेके आना एक अच्छी मशीन का काम होता है। एक अच्छे कानून का भी यही काम होता है कि समाज के डिफरेंट वर्गों के बीच में वो फ्रिक्शन को कम करता है और समाज का जो आउटपुट होता है उसमें खुशहाली बढ़ाता है समाज में। मिनिमम पेन मैक्सिमाइज द प्लेजर। इसी तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल्स हुए, उस जूरिस्प्रूडेंस के हिस्टोरिकल स्कूल्स हुआ। तो कहना ये चाहिए कि इंसान जो एक समय जंगलों में भटकता था, ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जो मिला जंगल में उठा करके खा लिया। और जैसे जैसे हमारा समाज बदला, हमने खेती करना सीखा और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो भी आप ही की दुआ से। तो जैसे जैसे हमने खेती करना सीखा, हमें एक जगह रुकना था, फिर एक जमीन का टुकड़ा था, उसको हमें आपस में बांटना था। हम लड़ते कि ये मेरा है। नदी से पानी लाना है तो मैं ज्यादा पानी दूंगा, 4 पेड़ लगे तो 2 मेरे 2 तेरे। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। पहले रस नलियस जो कुछ था दुनिया में वो सबका था, लेकिन अब क्योंकि एक जगह पर ठहरना था, अर्बन सिविलाइजेशन बनना था, तो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी आया, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी आया, ठीक है। इस सब के लिए धीरे धीरे फिर हम एक जगह रुके, फिर परिवार बने, फिर समाज बना, फिर शादी बनी, फिर बहुत सारी चीजें इसी तरह से बनती चली गई और विधियों की आवश्यकता बढ़ती चली गई। और जब विधि का एक कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, यह कहलाता है पॉजिटिव लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरी तरह से एक लॉ है, 100% एक लॉ है। लॉ क्या है? लॉ डिटरमिन करता है हमारे राइट्स एंड इंटरेस्ट को, हमारे अधिकारों को, ठीक है। राइट क्या है? राइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, हमारे हितों का एक गुच्छा है अधिकार। यदि आपका अधिकार है जिंदा रहना, राइट टू लाइफ, तो आपके अधिकार में सांस लेने का अधिकार शामिल है, राइट टू लाइफ में खाना खाने का अधिकार शामिल है। और लाइफ का मतलब केवल एक जानवर की जिंदगी तो नहीं होती। तो राइट टू लाइफ में शिक्षा पाने का अधिकार है, और लाइफ का मतलब यह भी है कि अपनी प्रोजनी बढ़ाएं। तो राइट टू लाइफ में राइट टू रिप्रोड्यूस भी शामिल होगा। तो इस तरह से इसके कई आयाम हैं। तो राइट का मतलब वो ऐसे कुछ हक हैं जो आपके लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं। इसका मतलब होता है अधिकार, हितों का एक गुच्छा, गुलदस्ता, ठीक है, वो है अधिकार। और जहां यदि अधिकार है तो उसके हनन के लिए कहीं ना कहीं कोई सजा होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूं कि आपका अधिकार है कि आप चांद तोड़ कर ले आए, आप चांद को बेच दें, और कोई आपको चांद ना बेचने दे, आपके पास कोई रेमेडी ना हो, तो उस अधिकार का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक घोषणा है। तो राइट विदाउट रेमेडी इज नो राइट, यानी कि बिना उपचार के अधिकार का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके पास में अपने अधिकार का पालन करवाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, उस अधिकार का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक घोषणा, एक झूठा वादा है, ठीक है। तो राइट का मतलब है हित, और जो पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि राइट या हित संरक्षित किए जाते हैं, कोई ना कोई होना चाहिए जो उसकी गारंटी दे कि हम इसका पालन करवाएंगे। तो ऑस्टिन पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ सबसे मॉडर्न स्कूल ऑफ लॉ है तुलनात्मक रूप से, जिसमें कहते हैं कि लॉ क्या है? लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन। सर्वोच्च सत्ता वो राजा हो सकती है,
वो संसद हो सकती है, वो कोई चांसलर भी हो सकता है, जैसा सिस्टम आपका हो, उसका जो सबसे बड़ा राजा है वो सर्वोच्च सत्ता है, ठीक है। तो सोवरेन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कोई हित आपका अधिकार है। राइट जो है, इट इज कमांड ऑफ द सोवरेन। ऑस्टिन क्योंकि एक कमांडर थे, आर्मी में काम करते थे, इसलिए वो एक ऐसे जूरिस्ट जो कहते हैं अधिकार वो है जो सोवरेन सर्वोच्च सत्ता की कमांड है, जिसका पालन हर किसी को करना होगा, और जो उसका पालन नहीं करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो अगर आपके राइट का कोई उल्लंघन करे तो राइट के बदले में क्या होती है, ड्यूटी। कोरल ऑपोजिट, एक प्रकार से ऑपोजिट्स है एक दूसरे के। यहां अगर मेरा अधिकार है कि मैं स्वच्छ हवा में जीऊं, तो आपका कर्तव्य है कि आप हवा को गंदा ना करें। तो बिना ड्यूटी के राइट का कोई भी मतलब नहीं है। सो राइट विदाउट रेमेडी इज नथिंग, पहला पॉइंट। और बिना ड्यूटी के राइट का पालन हो नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति को अधिकार है जिंदा रहने का, तो दूसरे की ड्यूटी है उसे ना मारने की। तो राइट जो है उनका पालन करना ड्यूटीज पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही और भी कई लीगल टर्म्स होते हैं जो आपको संवैधानिक विधि में दिखाई देंगे, जैसे कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? पोलियो का ड्रॉप पिला दिया तो बच्चे में इम्यूनिटी आ जाती है, फिर कोई वायरस और बैक्टीरिया उस पर असर नहीं करता, है ना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इम्यूनिटी वो चीज है जो कि आप बिना किसी के रोके टोके आपको इम्यूनिटी मिल गई, किसी और चीज का आप पे असर नहीं होगा। यह भी एक वैदिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लाइबिलिटी यानी कि दायित्व, आपके समाज के प्रति क्या दायित्व है, वो लाइबिलिटी है। तो इम्यूनिटी, लाइबिलिटी, प्रिविलेज, राइट, ड्यूटी, ये सब विधि के साथ में निकले हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। और कानून को जैसे हम मॉडर्न सेंस में कहते हैं वो है जो कि कमांड ऑफ द सोवरेन है। और सोवरेन डेमोक्रेसी में जनसत्ता जहां पर है, हम ही सोवरेन है। वैसे तो यदि कोई लिखित स्ट्रक्चर माना जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सोवरेन है, सर्वोच्च विधि। और उससे नीचे की जो भी विधियां हैं वो अपने जिंदा रहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर है। हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं हो सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्लैश में हो। एवरी लॉ इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर इट्स इंसिस्टेंस एंड कंटिन्यूअस डिपेंड अपॉन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा का बनाया हुआ सर्वोच्च विधि। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कंपोजिशन। हर एक चीज का एक कंपोजिशन होता है ना, हमारी भी एक संरचना है, हर मशीन की एक संरचना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन। तो कंपोजिशन किसी देश का कैसा होगा वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। पहले सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था, वही राजा होता था, वही कानून बनाता था, वही न्याय देता था। इससे क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। यदि सारा पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा, वो कुछ भी करेगा, वो अपनी मनमर्जी का लॉ बनाएगा, अपनी मनमर्जी के तरीके से उसको इंप्लीमेंट करेगा और अपनी मनमर्जी की सजाएं दे देगा। इसको रोकने के लिए एक लीगल कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। मॉन्टेस्क्यू जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने एक किताब लिखी स्पिरिट ऑफ लॉज, और उस किताब में उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को लेकर आया और उन्होंने ये कहा कि पावर, सत्ता विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति के अंदर सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए निहित। तो आगे जाके मॉडर्न समाजों ने उस चीज को अपनाया है। हमारे यहां ये तो आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा कि शासन के 3 अंग होते हैं। तो हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि वहां की संसद कैसी होगी, वहां की एग्जीक्यूटिव कैसी होगी, वहां की विधायिका या संसद कैसी होगी, है ना, एग्जीक्यूटिव कैसी होगी, जुडिशरी न्यायपालिका कैसी होगी, कार्यपालिका कैसी होगी, कैसे फंक्शन करेंगे, किसके क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती हैं। और बाकी जो सारी विधियां होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए उद्देश्यों को, जो मैं कक्ष में जब आई थी यहाँ पर, तो एक प्रियम्बल आपने लिखा हुआ देखा था, मैंने लिखा हुआ देखा था, बोर्ड पर लिखा था प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, जिसको हिंदी में एक तरह से और कहते हैं उद्देश्य का, यानी कि उद्देश्य किसी भी लॉ का। प्रियम्बल जो होती है वो एक तरीके से एक एसेंस होती है, उसमें उद्देश्य लिखा होता है कि उस विधि का उद्देश्य क्या है। और प्रियम्बल सबसे पहला पन्ना होती है किसी किताब का, और वो सबसे आखिरी में लिखा जाता है जब वो किताब बन जाती है, आखिरी में ड्राफ्ट होता है, सबसे पहले चिपकाया जाता है। तो ये है प्रियम्बल ऑफ इंडिया, जो आपने देखी थी, पढ़ी और समझी थी। उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य सारे दिए हुए हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया।
तो हमारे संविधान में ये सारा, या किसी भी देश के संविधान में लिखा हुआ होता है कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं जो बताते हैं कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, यानी द्विस्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, और हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, लेकिन कुछ ओवरलैप भी है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। जुडिशरी तो अलग है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कुछ ओवरलैप है, क्योंकि जो हमारा मंत्री परिषद है, आवर मिनिस्ट्री इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। हमारे जो मंत्री होते हैं वो मंत्री बनने के बाद भी संसद के सदस्य रहते ही हैं, यानी वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होने के बाद भी, कार्यपालिका हिस्सा होने के बावजूद भी विधायिका का हिस्सा बने रहते, वहां से इस्तीफा नहीं दे देते, दोनों के हिस्सा रहते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लोग जानते हैं ना। ये क्या है हॉरिजॉन्टल? तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तीनों बराबर प्लेटफॉर्म में है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार। और तीसरा टेयर ऑफ द गवर्नमेंट, 73rd 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पंचायती राज की अवधारणा और म्युनिसिपैलिटी की अवधारणा भी शामिल कर दी गई। तो यह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यह है हमारा सर्वोच्च लॉ। और हर लॉ, इसके बाद सेकंड नंबर का लॉ कौन सा आता है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है, जैसे कि अभी नया नया बना है भारतीय न्याय संहिता, BNS, है ना। BNS जो है वो उसने रिप्लेस किया दंड संहिता को, दंड प्रक्रिया संहिता थी पहले CRPC, उसकी जगह अब बदल करके दूसरे कोर्ट, 3 एविडेंस एक्ट को साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से ये तीनों अधिनियम तिकड़ी पूरी की पूरी लागू हो गई। 3 किताब एक साथ चलती है, हर वकील लेके चलेगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी पार्लियामेंट्री लॉज है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन एनैक्टमेंट पार्लियामेंट ने बनाया, ये सब इंफीरियर है किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। आप लोग साइंस वाले हो, कुछ बायो साइंसेस वाले होंगे, आपने फूड पिरामिड देखा होगा। फूड पिरामिड होता है, ट्राइंगल बनाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ ऐसा। तो सबसे ऊपर बैठा है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सेकंड नंबर पे आएंगे पार्लियामेंट्री लॉज, जो पार्लियामेंट ने बनाए, संसद ने। उसके नीचे आएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। इस धोखे में कभी मत रहना कि हमारे कानून, हमारा पार्लियामेंट बना रहा है सबसे ज्यादा। आज की डेट में 70% कानून एग्जीक्यूटिव बना रहा है, कलेक्टर कमिश्नर बना रहे हैं। उस तकनीक को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग, ठीक है, एंटी रैगिंग रूल आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास किए होंगे यूनिवर्सिटी के। UFM रूल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास किए होंगे। हमारे प्रोफेसर के एम्प्लॉयमेंट के रेगुलेशन संसद ने नहीं बनाए। ठीक है, तो वो थर्ड नंबर के आते हैं, उससे इंफीरियर है, वो पार्लियामेंट्री लॉ के नीचे आएंगे, इंफीरियर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके नीचे डायरेक्शंस, घास पात की तरह। घास को खाया टिड्डे ने, ठीक है, टिड्डे को उसके ऊपर गाय ने, गाय को खाया शेर ने, शेर सबसे ऊपर है। कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, वो भी यही देता है और कहता है सबसे ऊपर कमांड ऑफ द सोवरेन, सोवरेन सबसे ऊपर है। ठीक है, ऐसा कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं प्रिवेल कर सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करे। ऐसा कोई रूल नहीं बन सकता जो कि पार्लियामेंट्री लॉ की अवहेलना करे। ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता जो कि रूल की अवहेलना करे। अपनी लेजिटिमेसी वो ड्रॉ करता है अपने ऊपर वाले से। ठीक है, तो यही कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस बैकग्राउंड के साथ एक ये जुमला आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। 2 biggest challenges that our world is facing is natural stupidity and artificial intelligence। तो आज आलू लेने के लिए मुझे हिसाब किताब करने के लिए कागज लेना पड़ता है। साइंस में कॉन्सेप्ट होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना, सुना होगा। कभी किसी दोस्त का, कभी किसी रिश्तेदार का अपेंडिक्स का दर्द उठा और अचानक ऑपरेशन करना पड़ा। उसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे शरीर में होते थे, एवोल्यूशन बताता है, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है। उसको निकाल दो तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे आंख के किनारे पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो मछलियों में होती है, ये बताती है कि हम कभी पानी में रहा करते थे और अब हम जमीन पे आ गए। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये दिमाग का भी कहीं वेस्टिजियल ऑर्गन न बन जाए, हम जिसका यूज नहीं करते वो चीज अपना
इंपॉर्टेंस खो देती है। तो खैर, कीपिंग द जोक्स अपार्ट, नेचुरल स्टुपिडिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ में धीरे धीरे अपने विषय पर आने की कोशिश करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कृत्रिम, कृत्रिम, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, इंटेलेक्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आप देख रहे हैं पीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा है। इंटरनेट, ये मोबाइल जिसके बिना तो शायद मेरे लिए रहना नामुमकिन हो जाए, और आपके लिए भी, ये सब कुछ इसी का नतीजा है ना। इसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया, स्पीड दे दी, इकोनॉमी दे दी, हेल्थ सेक्टर में कमाल कर दिए। एक्सरे होते हैं, प्रेडिक्शन होता है बीमारियों का, स्टेंट लगाए जाते हैं हार्ट में, ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, डॉक्टर रिमोट कंट्रोल पर सर्जरी करते हैं, है ना। यहाँ वो अपना माउस घुमाएंगे, वहाँ अंदर कैंची घुसेगी। इस तरीके से ये एआई है, ये एआई का ज़माना है, बिना छुए। अब मैं यहाँ आ रही थी आपके कॉरिडोर में, कुछ लड़के एक ऑटोमेटाइज्ड मशीन को चला रहे थे। अब कह रहे हैं डिलीवरी बॉयज की जगह अब आएगा वो, जिस तरीके से कि फोटो भी आजकल शादियों में खींची जाती हैं, है ना, ड्रोन। और वो डिलीवरी बॉय वो ड्रोन अब पिज़्ज़ा वीज़ा दे के जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, गेट पे कोई नहीं रोकेगा हॉस्टल के उसको। और उस ड्रोन को देखिए, देश की खतरा कितना है सिक्योरिटी के लिए, है। अफीम, चरस, गांजा, ग्रास सब गिराई जा रही है यहाँ पे। आप चौकीदारी करते रह जाइएगा। तो ये हमारी जिंदगी के कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ के हर एक पहलू को इसने छुआ है। हमारी लाइफ के हर एक पहलू को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने छुआ है। एआई एंड ह्यूमंस, लड़की कहाँ आता है, लेकिन लड़के का भी आप माने साथ में, क्योंकि पीपीटी मैंने बनाया है। तो ये वो एरियाज हैं जिन एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल है। उसके लिए हम आपकी कम्युनिटी के आभारी हैं कि आप लोगों ने, इंजीनियर्स ने हमारी ज़िंदगी को सरल बनाया। हेल्थ केयर हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे वो वेबसाइट्स हो जिनमें से मैंने ये मैटर निकाला है, टर्निटन ना करवाएं, रोबोटिक्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। इस सब में ट्रांसपोर्टेशन है, गूगल लगाते हो आप कार में, आपको आप किसी पान वाले से पूछने की ज़रूरत नहीं है MITS कहाँ है। तो इस तरीके से ये सारे जो एरियाज हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे डेवलपमेंट को बहुत आसान बना दिया, हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया। ये स्कोप है, आपको सब पता है। ये ऑटोमेटाइज्ड व्हीकल है, विदाउट, अब तो बिना ड्राइवर के व्हीकल्स हैं जो अपने आप चलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार उठता है, लोग डरते हैं कि जब शुरू में मशीनों का आविष्कार हुआ था तो कहते थे अब मजदूरों का क्या होगा। लाल झंडा, यूनियन, मशीन, सब बहुत विरोध करते थे मशीन आने, लेकिन इंसान अपनी जगह बना ही लेता है। मशीन इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाती, इसलिए कभी ना कभी शाहरिफ साहब की और सुषमा शर्मा की ज़रूरत रहेंगी, प्रोफेसर्स रहेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि और ये रोबोट आ जाएं टीचिंग का काम करने, वकील भी रहेंगे, लेकिन हाँ, काम में हेल्प ज़रूर हो जाती है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट्स मैंने शेयर किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एआई से इसका क्या लेना देना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे जीवन के हर एक आयाम को छूता है, इसलिए वो नॉलेज को भी छूता है। नॉलेज, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन के कितने सारे पहलुओं को टच कर रही थी। ये सब हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, सब एक एक हमारे आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि एआई और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपस में वैक्यूम टाइट कंपार्टमेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत लेना देना है साइंस से, एआई से, ट्रेडिशनल नॉलेज से, और लॉ का भी बहुत लेना देना है, क्योंकि हर लॉ का माता पिता सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ डेट्स जैसे कि आप पढ़ लेंगे। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को गारंटी किया गया।
ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के कुछ भाग हैं। मैं इनके मतलब आपको सरल भाषा में बता देती हूँ, ये मान करके आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं। सोवरेन यानी कि सर्वोच्च सत्ता, जिसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं होती, वो सोवरेन कहलाती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखित सोवरेन लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्योंकि हम ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल भी सकते हैं, इसलिए पीपल सोवरेन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ऐसा कानून है जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जनता का है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में आपने लास्ट में पढ़ा होगा, वी हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने आप को आत्मार्पित कर रहे हैं, यानी कि हमने खुद बनाया है। तो सोवरेन हो गया। सेक्युलर शब्द बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, यानी कि किसी भी धार्मिक आइडियोलॉजी को से गवर्न नहीं होगा हमारा संविधान। सारे धर्मों को डेवलप होने का पूरा प्रोपोगेट करने का पूरा अवसर देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेक्युलर। सोशलिस्ट समाजवादी अवधारणा है सामाजिक न्याय की धारणा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले भी थी, जो अंतर्निहित थी, इम्प्लिसिट थी, इट वॉज मेड एक्सप्लिसिट बाय दिस वर्ड। देन डेमोक्रेटिक यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सत्ता, ठीक है। रिपब्लिकन जहां की सत्ता का जो हेड है वो चुना हुआ होता है। मोनार्कियल जहां रानी होती है, प्रेसिडेंट साहब चुने गए हैं, वो रानी या राजा की तरह खानदानी नहीं है, इसलिए हम रिपब्लिकन हैं। और जस्टिस, 3 तरह की जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। ये इतनी तरह की हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। अब लिबर्टी, जस्टिस, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी प्रीवियस स्पीकर ने डिस्कस किए थे, तो हम इन पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। जस्टिस का मतलब है न्याय, आपको पता ही है। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है, समझ रहे हैं ना। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वतंत्रता लिमिटेड होती है, स्वच्छंदता की कोई लिमिट नहीं होती। और अति स्वच्छंदता किसको जन्म दे देती है? क्राइम। क्राइम किसी के अधिकारों का हनन। अति स्वच्छंदता से क्या होता है? आप दूसरे के अधिकार का हनन कर लेते हैं, अपने अधिकार की लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं। और जब आप किसी के राइट को इंक्रोच कर लेते हैं तो आप एक अपराध करते हैं, जिसके लिए जस्टिस मैकेनिज्म आपके लिए एक सजा निहित करता है, और कानून की प्रक्रिया से आपको वो पनिशमेंट या सजा दी जाती है। यहाँ पर एक शेर सुनाना चाहूंगी, हाँ, क्योंकि कोई ना कोई अपराध तो हम सभी करते हैं। भाई भोपाल से आए हुए हैं, भोपाल से आए हुए हैं, तो एक कानूनी सा शेर सुने। इस सिरे से, बीसी साहब से शुरू करते हैं, आपके एचओडी साहब से शुरू करते हैं। इस सिरे से उस सिरे तक, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक जुर्म है। शरीक मीन्स शामिल, इंक्लूडेड, जुर्म मीन्स ऑफेंस, क्राइम। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक जुर्म है, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। ये बहुत ही कानूनी सा शेर है, इसमें कई कानूनी लफ्ज यूज हुए हैं। यानी कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है अच्छा बुरा, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अगर एआई अच्छी है तो सबके लिए, एआई बुरी है तो हम न करिए। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। एवरीबडी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट्स व्हिच आर बीइंग कॉज्ड इन द सोसाइटी। आदमी या तो जमानत पर रहा है, या तो हम कानूनी रूप से जमानत ले, बेल ले ली हमने। बेल इज ए राइट, अरेस्ट क्या है? इट इज एन एक्सेप्शन। बेल इज ए राइट, ठीक है। जमानत यानी बेल। आदमी जमानत पर रहा है या फरारी काट रहे हैं, भाग गए, पुलिस ढूंढ रही है, या फरार, फाइन। तो everybody is responsible for the wrong which is being committed in the society. Somebody is escaping unlawfully, he is farar. Somebody has taken a bail through the judicial process और लड़ रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं या अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। ये हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमें मौका देती है अपने आप को डिफेंड करने का, अपने अधिकारों की रक्षा करने का, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स एक प्रकार की ह्यूमन राइट्स हैं। अब ह्यूमन राइट्स क्या है ये बताते हैं। ह्यूमन राइट्स शब्द से जाहिर है कि ये राइट्स क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया। और ह्यूमन क्या है आपको पता ही है, होमो सेपियंस। तो मनुष्यों के जो अधिकार हैं वो ह्यूमन राइट्स हैं। इसकी फॉर्मल अवधारणा तो हमारी संस्कृति में हमेशा से रही,
वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत रहा, ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड बी इक्वल, इसकी अवधारणा रही हमारे यहाँ। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और उसमें बहुत ज्यादा विनाश हुआ। उसके बाद बना लीग ऑफ नेशंस 1919 में, 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया था। 1919 में लीग ऑफ नेशंस बना, क्यों बना? कि दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। तो अब वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा भी वर्ल्ड वॉर हुआ। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो पहले वर्ल्ड वॉर का नाम वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, क्योंकि जब तक दूसरा नहीं होगा तो वो वर्ल्ड वॉर ही कहलाएगा। तो दूसरा वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, 1940s आ रहे थे, 45, तो यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय पंचायत, कोई सोवरेन बॉडी नहीं है वो, लेकिन सब देशों की एक पंचायत है जिन्होंने मिलकर कोशिश की कि ह्यूमन राइट्स को पहचाना जाए। क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स में क्या हुआ था कि जो हिटलर है, हिटलर ने बहुत हद कर दी थी और उन्होंने कहा था कि हम आर्य हैं और बाकी जो सारे लोग हैं वो अनार्य हैं और वो इंफीरियर रेस हैं। तो जो भी अनार्य हैं वो इंफीरियर रेस के लोग हैं, उनको मार डालो, उनको जीने का अधिकार नहीं है। और ऐसे कैदियों को मार दिया गया, जला दिया गया भट्टियों में और कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर्स में जहरीली गैस डाल के उनको मार दिया गया और उनकी जो बॉडी है उसकी जो भस्म है वो खेतों में डाल दी गई। तो इस सब के बाद में जब हिटलर की हार गए और उनकी डेथ भी, सुसाइड भी कर लिया था हिटलर ने, ये माना गया कि कुछ बेसिक अधिकार ह्यूमन राइट्स के तौर पे पहचान लिए जाएं, जो कि हर देश, चाहे वो किसी भी प्रकार का शासन सत्ता वाला हो, अपने अपने संविधानों में इन कानूनों, इन अधिकारों को इंक्लूड करेगा। ये ह्यूमन राइट कहलाते हैं। तो 1949 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हिंदी में कहेंगे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये 1948 में फाइनल हो गया। और इसके बाद में ये एक मॉडल बना, इसमें 30 आर्टिकल्स हैं कि, और वो ये कौन सा समय था 48-49 का, जब ज्यादातर देश स्वतंत्र हो रहे थे, कॉलोनियल रूल खत्म हो रहा था, ब्रिटिश राज का सूर्य अस्त हो रहा था। नए नए देश बनेंगे तो उनको अपने अपने संविधान बनाने पड़ेंगे। हम भी अपना संविधान लिखने की कोशिश में, जद्दोजहद में लगे हुए थे उस वक्त। तो हमने भी अपने सामने रखा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कि इसमें से हम भी कुछ ले लें। अब एक्चुअली क्या था, नए नए जब कोई स्वतंत्र देश होता है तो फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने कहा, राइट होगी तो रेमेडी होगी, राइट के बिना रेमेडी नहीं है। अगर हमने कह दिया कि ऐसा फंडामेंटल राइट है तो हम रेमेडी कैसे दे देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो झूठे साबित हो जाएंगे। ऐसा वादा ही ना करो जो आप पूरा ना कर पाओ। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि फॉर द टाइम बीइंग जितने अधिकार हम गारंटी में दे सकते हैं उस समय के को देखते हुए, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रख देते हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में, और बाकी के हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल देते हैं पार्ट 4 में फॉर द टाइम बीइंग, इस उद्देश्य से कि एक दिन धीरे धीरे हम उनको पार्ट 4 से निकाल के पार्ट 3 में रखते चले जाएंगे जैसे जैसे हम डेवलप होते चले जाएंगे। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि गारंटीड अधिकार है। हर भारत का नागरिक यदि शासन का उसके इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, आपको किसी छोटे मोटे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है फंडामेंटल राइट्स। और बाकी के जो थे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो ऐसे राइट्स हैं, एक प्रकार से राइट हम उन्हें कह सकते हैं, वो निर्देश हैं कि जब हमारा शासन कोई भी अपनी पॉलिसी बनाएगा तो इन निर्देशों का ध्यान रखेगा। वो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, DPSPs हम शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद पार्ट 4A एक बाद में जोड़ा गया, क्योंकि जैसे 4 के बाद में 5 दूसरा कुछ पार्ट था, 4 के बाद में बीच में 5 अगर लगाएंगे तो सारी सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जब हम कानून में अमेंडमेंट करते हैं तो ABCD डाल देते हैं। तो जहां आपको 4A, 5A, 51A दिखे, मतलब आप समझ लेना इसमें अमेंडमेंट हुआ है, बाद में जोड़ा गया है। तो पार्ट 4A जोड़ दिया, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, जो पहले 10 थी 11 हो गई हैं, कि ड्यूटी भी होना जरूरी है, बिना ड्यूटी के तो राइट का पालन हो नहीं सकता। तो जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ दी गई पार्ट 4A में, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अंदर बहुत सी फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें से एक ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और 12 to 35 आर्टिकल इसमें
भाग 3 में हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। और ये जो ड्यूटीज़ हैं, ये जो राइट्स हैं, ये इक्वलिटी का भी अधिकार है, इसमें जीवन का भी अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है ना। ये देखिए, आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ये 6 वैरायटी के मेनली अधिकार हैं, 6 वैरायटी के हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, स्लेवरी नहीं होगी, कोई गुलाम की प्रथा का अंत हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेक्युलर कंट्री अपने अपने धर्म को प्रोपोगेट करेंगे, पालन करेंगे। कल्चरल और एजुकेशनल अधिकार, इसके अंदर आपके ट्रेडिशनल नॉलेज भी आ जाएगा, जो आप ट्रेडिशनल नॉलेज, आपका सेमिनार ट्रेडिशनल नॉलेज को लेकर के है। इसके अंदर कल्चरल और एजुकेशनल अधिकार 29 to 30 आर्टिकल्स में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से ये भी है 21 के साथ साथ। 32 उपचार देता है, उपचार देता है। आर्टिकल 32 के तहत आप याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं अगर ऊपर के 14 से 30 में से किसी का उल्लंघन हो। अगर ये ऊपर के जितने भी अधिकार हैं इनका उल्लंघन हो, तो आर्टिकल 32 खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है जिसको कोई कर्टेल नहीं कर सकता, और आप रिट ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस है 32 to 26, 227, 136। आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका, रिट पिटिशन, मैंडेमस, सर्शोरेरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, हेबियस कॉर्पस, ये सब कहलाती हैं। हेबियस कॉर्पस, पहली 32 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस मतलब बॉडी होता है ना, शरीर, तो हेबियस कॉर्पस मतलब बॉडी को प्रस्तुत कीजिए कोर्ट के सामने। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले गई, मिल नहीं रहा, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस, कोर्ट बोलेगा ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष उस व्यक्ति के शरीर को प्रस्तुत किया जाए, तो वो कहलाता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। मैंडेमस, मैंडेमस राइट और ड्यूटी का खेल है पूरा। अगर पब्लिक अथॉरिटी की, कलेक्टर की, कमिश्नर की, किसी भी सरकारी ऑफिस की कोई ड्यूटी है आपके प्रति और आपका अधिकार है, आपने वो मांगा, उन्होंने नहीं दिया, आप मैंडेमस लाइए। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड, शाब्दिक अर्थ मैंडेमस का होता है कमांड। कोर्ट कमांड देगा उस अथॉरिटी को कि आप इनके अधिकार का पालन करवाइए, अपना ड्यूटी करिए, ठीक है। उसके अलावा होती है सर्शोरे राय। सर्शोरे राय क्या होती है? एक सरकारी आदेश, कोई गलत आदेश है सरकारी, जिससे आपके अधिकारों का हनन होता है, बायस से दे दिया, पहचान के कारण दे दिया, आपका नुकसान हो गया, सर्शोरेरी में उसको क्वैश कर दिया जाता है। और प्रोहिबिशन में जब निर्णय नहीं आया, गलत निर्णय आने की उम्मीद है, गलत प्रक्रिया चल रही है, आप प्रोहिबिट करवा दोगे प्रोसीडिंग, तो प्रोहिबिशन हो जाता है, ठीक है। और को वारंटो, कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के किसी पद पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके खिलाफ को वारंटो, वो बताए अंडर विच वारंट एंड सील ही इज होल्डिंग द ऑफिस। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जब भी कोई अफसर, पुराना अफसर कोई पद पे बैठता है, तो अंडर द वारंट, वारंट केवल अरेस्ट का नहीं होता, वारंट अपॉइंटमेंट का भी होता है। तो वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो अपना वारंट दिखाइए, को वारंटो, ठीक है। तो ये है को वारंटो कि आप अपना बताइए कि आपको इस पोस्ट पर रहने का अधिकार है, गवर्नर रहने का, कलेक्टर रहने का, वट एवर इट इज, तब आपका दिया हुआ ऑर्डर सही है। और अगर आप उस पोस्ट पर गलत रूप से बैठे तो आपका दिया हुआ ऑर्डर कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो क्वैश कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की रेट्स हैं जो कि आर्टिकल 32 के अंदर दी जाती हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं, और फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, किसी और तरह की हानि हुई है, तो 226 में हाई कोर्ट जाएं। 226 हाई कोर्ट के लिए है, सिमिलर पावर। 226 का स्कोप इसलिए वाइडर है कि फंडामेंटल राइट के हनन के अलावा और भी किसी अधिकार का हनन हुआ है तो 226 के तहत हाई कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। 227 सुपरवाइजरी, सुपरवाइजर होता है ना जैसे, तो हाई कोर्ट सुपरवाइजर का काम करता है, अपने नीचे जितने भी ट्रिब्यूनल और कोर्ट है उनका आदेश मंगा के देखता है सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। 227 136 अपील, स्पेशल लीव बाय अपील, कोई भी मुद्दा किसी भी फोरम ने डिसाइड किया हो, चाहे वो कोई ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो कोई कोर्ट हो, अगर निर्णय गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर के अपील दायर कर सकते हैं। 136 में SLP कहलाता है, शॉर्ट में इसको SLP कहते हैं। ये सारे उपचार दिए गए हैं आपके अधिकारों के हनन के लिए, ठीक है। और ये है राइट टू लाइफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आ जाएगा आपके फ्रीडम के बीच, फ्रीडम वाले ग्रुप में आ जाएगा 90 to 22 में। आर्टिकल 21 एक सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे अहम। इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। किसी भी व्यक्ति को
विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अलावा उसके न्याय और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये है आर्टिकल 21 और इसमें जीवन का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, दो तरीके के अधिकार दिए हुए हैं। और इसका कोई एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, इसको एक्सप्लेन करा, इसको बढ़ाया है किसने? कोर्ट ने। तो कोर्ट ने कहा इसको हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ये हार्ट है, सोल है, आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसके तहत इसको जब विस्तार किया गया आर्टिकल 21 का, तो इसके अंदर डिग्निटी का भी अधिकार आ जाता है, गरिमा का अधिकार। ठीक है, इसके 4 पिलर हैं, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी। इसमें गरिमा का भी अधिकार है, इसमें रोजगार का भी अधिकार है। रोजगार का फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, रोजगार सरकार दिलाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उसको आर्टिकल 21 के रास्ते से निकाल कर कोर्ट ले आया फंडामेंटल राइट में। चैप्टर 4 से निकाल के चैप्टर 3 में ला रहे हैं। जो काम संसद को करना चाहिए वो कोर्ट कर रहा है। संसद ने एक बस जोड़ा है 21A, क्या है बताओ? 21 कैपिटल A, प्राइमरी एजुकेशन, एक जोड़ा है फंडामेंटल राइट। ठीक है, और जब वो राइट जुड़ी, अधिकार जुड़ा, तो ड्यूटी जुड़ गई, एक 10 थी तो 11 हो गई। पार्ट 4A में कि पेरेंट या गार्जियन की ड्यूटी है कि बच्चे को स्कूल भेजे। ठीक है, सिर्फ एक शुद्ध एनवायरनमेंट का अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल था कि ऐसी नीति बनाएगा शासन के एनवायरनमेंट शुद्ध मिले। वहां से घसीट के सुप्रीम कोर्ट 21 के दरवाजे से निकाल के कह दिया कि ये तो जीवन में शामिल है। अगर पॉल्यूशन वाला एनवायरनमेंट है तो आदमी जिएगा कैसे? अगर एजुकेशन नहीं है तो आदमी कैसे अच्छा जीवन जिएगा? एनिमल एग्जिस्टेंस हो जाएगा। एजुकेशन को भी 21 के रास्ते से 4वें भाग से निकाल के 3rd में ले आए। घर के अधिकार को भी ले आए। राइट टू रोड इज राइट टू लाइफ, उम्मेद राम का केस, राइट टू रोड को भी उठा के ले आए। हर चीज को, राइट टू हेल्थ को भी उठा के ले आए। राइट टू हेल्थ नहीं है हमारा फंडामेंटल राइट, इनमें नहीं है जो आप देखोगे। लेकिन कोर्ट कहता है जब राइट टू लाइफ है तो वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में हम ऐसी नीति बनाएंगे कि लाइफ अच्छी रहे, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उठा करके 21 के दरवाजे से फंडामेंटल राइट में ले आए। 32 में रिट दे दी, आर्टिकल 32 में रिट दे दी कि पॉल्यूशन नहीं होगा, सारे पुराने व्हीकल्स को खत्म करो, ताजमहल के आसपास पॉल्यूशन मत करो, शिक्षा दो, है ना, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल्स खोलो, सेक्सुअल हरासमेंट विमेन का मत करो, वो भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। कहीं दिया नहीं है आर्टिकल 21 में, नहीं। लेकिन 21 के रास्ते से उसको डिग्निटी को भी राइट टू लाइफ बना दिया। इसे कौन क्लेम कर सकता है? ज्यादातर को तो सिर्फ सिटीजन और अदरवाइज कुछ को नॉन सिटीजन भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे जीवन का अधिकार नॉन सिटीजन को भी है। और किसके खिलाफ लिए जाते हैं? शासन के खिलाफ ये लिए जाते हैं। ठीक है, कितना टाइम बचा है मैडम, प्लीज बताएंगी? तो बस कंक्लूड कर रहे हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि एआई के चलते बहुत सारे पोटेंशियल थ्रेट्स आ गए हैं जो कि हमारे इन सारे आयामों को अफेक्ट करते हैं। तो जीवन के अधिकार में एआई से सुरक्षा का भी अधिकार है, उसके दुरुपयोग से सुरक्षा का भी अधिकार है, और एआई के थ्रू नॉलेज देने का भी अधिकार इसमें शामिल होगा। ठीक है ना? क्या आपने वक्त बताया? एक कितने 10 मिनट्स वी आर हैविंग। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही बता रही थी कि हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक कानूनों की कमी थी। तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया जिसने कि कुछ ऐसे ऑफिसेस को पनिशेबल कर दिया जैसे साइबर हैकिंग वगैरह जो एआई के थ्रू होते हैं, है ना। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी बन गया है 2023 में। वो भी डेटा सीक्रेसी, प्राइवेसी को लेकर के अधिनियम है। और ये कुछ केसेस मैंने इनलिस्ट किए हैं, आपके टीचर्स आपके साथ में स्लाइड शेयर कर देंगे, जिनमें मैंने जो अधिकार बोले उनको पहचाना गया है। ठीक है, ये सुनील बत्रा एक कैदी थे, इनको बार फेटर लगाए जाते थे, खाना अच्छा नहीं दिया जाता था, तो कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ में हेल्दी लाइफ की सभी चीजें शामिल है। ठीक है, और हेल्दी लाइफ व्यक्ति को प्रोक्योर करे, इसके लिए एआई का भी रोल है इलाजों में, मेडिकल साइंसेज में, तो वो भी एक तरीके से हमारा राइट हो जाएगा, है ना। और
ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारा भारतीय जो दंड संहिता थी, उस दंड संहिता में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, तो नया एक्ट बना दिया गया है जिसको भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा गया, जो 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तनीय है। उसमें ऐसे भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू किसी को डिफेम करना या उसके साथ में फ्रॉड करना या अपराध घोषित कर दिए गए हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पूरी वैधता के साथ मान लिया गया है। इट कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट ग्राउंड टू पनिश एनीबॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक लिंक आपको बताया, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सेकंड लेवल के लॉ कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे वाले, है ना। तो समाज में रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देना, कानून का शासन चलाने के लिए ये सारे कानून मिलजुल कर काम करते हैं। एआई हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स के आयामों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट है जीवन का अधिकार, उसमें वो सारी चीजें शामिल है जो आप अपने एआई के थ्रू गवर्न करते हैं। और इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस नटशेल उद्बोधन के साथ में मैं अभी यहाँ पे अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आई मोस्ट वेलकम। पूछ लें, आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो रेज करिए प्लीज, कोई डाउट हो। See, it's having a big opportunity for all of us. If you are having any doubt, any question, please feel free to ask to respected ma'am or sir here. If anyone is having any doubt, question in mind, want to discuss something, Constitution, traditional knowledge, AI law, anything. in today's session, if anyone is having any doubt, Even if any faculty member is having any doubt, you may please ask. देखिए, बहुत लिमिटेड समय था, बहुत बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया है। इसमें बहुत गहराई में जाया जा सकता है बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम। जो बाकी के स्लाइड्स पीपीटी के थे उसमें कुछ केसेस हैं सिर्फ जिसमें अलग अलग अधिकारों को जीवन का अधिकार बताया है। ठीक है, और एआई से डेफिनेटली लाइफ का हर एक पहलू जुड़ा हुआ है, तो इनडायरेक्टली वो भी उसके अंदर गवर्न हो जाएगा, है ना। पीपीटी इसी को लेकर के था। कल राइट टू प्राइवेसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो बिना झिझक के आप पूछिए, मैं आई विल ट्राई टू आंसर इट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। या आपके प्रोफेसर्स के थ्रू पूछ लें या एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट टू आस्क। साइबर क्राइम्स को लेकर के तो आजकल बहुत ज़्यादा साइबर एक डिपार्टमेंट ही बना हुआ है पुलिस का। साइबर क्राइम्स आर वेरी कॉमन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड अगेंस्ट द पर्सन। दो तरह के अपराध होते हैं, अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और जो रेपुटेशन के विरुद्ध होता है वो अगेंस्ट द पर्सन ही कहलाता है। तो उसको लेकर के भी पूरा लॉ है, भी विस्तृत हमारे सामने। वो भी एआई से होने वाले अपराध है, जो आपको स्पैम कॉल्स आते हैं, फ्रॉड होते हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हैं। प्लीज मैम, जैसे आपने आईटी रूल्स के बारे में बात करी और डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की, 2021 में आईटी रूल्स में एक अमेंडमेंट किया गया था सरकार द्वारा, जिसमें एक फैक्ट चेक यूनिट की उन्होंने स्थापना करी थी उसके अंदर की। और आज सितंबर 2020 बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। मैम, तो हम लोग कैसे मतलब सरकार पे ट्रस्ट करें जब ऐसे फैक्ट चेक यूनिट्स बनाए जाते हैं? देखिए, पहले तो ये रूल्स में केवल गवर्न होता था। बिल आया था 2021 में डाटा प्रोटेक्शन का, 2023 में वो एक्ट और अधिनियम बन गया है। जो पुराने जो भी रूल्स एंड डायरेक्शंस होंगे वो अब इसके अंतर्गत रेगुलराइज होंगे, है ना। यहाँ पे कानून की गलती नहीं है, यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया हमारी नियत में भूल है। यस मैम। जहाँ तक कि अगर आप टेक्निकल सेंस की बात करते हैं तो कोर्ट को यह अधिकार है। कोर्ट का क्या काम होता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट ये देखता है कि कानून की जो स्पिरिट है उससे मिलता जुलता लॉ है कि नहीं। अगर ऐसा लगता है कि लॉ आपके किसी फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी बेसिक प्रिंसिपल का हनन कर रहा है, तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर दे।
फिर भले ही उस लॉ को पार्लियामेंट रिपील करे या ना करे, वो इनेक्टिव हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन अभी भी हैं जो कि कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो पार्लियामेंट उसको रिपील करे या ना करे, वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट का शब्द ही लास्ट वर्ड होता है। कोर्ट जो होता है वो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसने जो कह दिया वही कानून। ठीक है, तो इसी के तहत जो वो रूल्स अगर कोर्ट ने सेट डाउन कर दिए हैं तो उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आप 2023 का जो नया एक्ट आया है उसके अंतर्गत जल्दी से जल्दी रूल्स बनाए। नहीं बनाते तो आप RTI फाइल कर सकते हैं, आपके पास में रेमेडीज है, आप ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकते हैं, आप RTI फाइल कर सकते हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप पिटीशन भी ला सकते हैं 32 में। मैम मेरा एक और फॉलोअप क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको बताया IT रूल्स के बारे में, तो वो 3 साल तक एज अ लॉ रहा, उसी के अंडर प्रोसीडिंग्स हुई, फैक्ट चेक यूनिट बना, तो मैम इसी के अकॉर्डिंग जो लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है उसको कोर्ट कैसे कॉम्पनसेट करेगा उन लोगों के साथ? ये रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है। लॉ जो होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, आगे के लिए बनता है। आज जो लॉ बनेगा उसका ऑपरेशन आगे से होगा। अगर कोर्ट ने उसको आज गलत डिक्लेयर किया है तो वो आज की डेट के आगे ऑपरेटिव नहीं रहेगा। लॉ बनने से लेके अनलॉफुल डिक्लेयर होने के बीच में जो भी एक्शंस हुई हैं वो उसी के अनुरूप होंगी, उसका तो भुगतान लोगों को करना पड़ेगा। पिछली डेट से रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं होता, भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता, लॉ आगे से होता है। पुराना लॉ सब जैसे अभी 2024 का एक्ट आया ना, जो पुरानी कार्यवाही है, जो केस उस समय फाइल हो गए थे, कोर्ट वो पुराने एक्ट के हिसाब से चलेंगे, 1890 IPC के हिसाब से चलेंगे। जो अपराध 1 जुलाई 2024 के बाद हुए हैं उन पे यह नया लॉ लगेगा। Anyone else? If anyone is having any doubt? आई हैव वन क्वेश्चन। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रन होती है, इसमें ड्राइवर नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग कार, उससे यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो और ये आइडेंटिफाई होता है कि ये कार की ही गलती से एक्सीडेंट हुआ है, तो जो लॉफुल प्रोसीडिंग्स है वो किसके अगेंस्ट चलाई जाएगी? देखिए, यदि कोई कार में ड्राइवर नहीं है, ड्राइवरलेस कार से किसी का एक्सीडेंट होता है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सिमिलरिटी एस्टैब्लिश करती हूँ। यदि किसी बच्चे के पास में लाइसेंस नहीं है, ये लॉ है, और बच्चा गाड़ी ले गया, उसने एक्सीडेंट कर दिया, कोई मरे, तो इसमें बच्चे को सजा नहीं होगी क्योंकि बच्चा माइनर है। 12 से नीचे है तो टोटली डोली इनके टैक्स है, उसके खिलाफ पिताजी की बंदूक उठा के किसी को मार देगा, कुछ नहीं। 8 से 12 के बीच में उसकी रैशनैलिटी देखते हैं, इसको निर्णय लेने की कितनी अकल थी, उसको पूछता है जज, टीवी देखते हो, अपराध क्या होता है, चोरी क्या होती है, उसकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, और 18 के ऊपर पूरी क्षमता है। 12-18 के बीच में जो अपराध करते हैं उनको बच्चों की जेल में भेजा जाता है सुधार करने। ये गलत क्वेश्चन है। तो यदि बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया तो उसके फादर को पेनल्टी लगती है, फादर के ऊपर केस होता है जिसकी जिम्मेदारी थी। इस केस में भी वही होगा। यदि ऑटोमेटिक मशीनरी है तो उस मशीन को क्या कहा किस कंपनी की, वो जो सिस्टम है वो किसी ने बनाया होगा, किसी ने रजिस्टर किया होगा, वो तो साइंटिस्ट था। उसके बाद में उस कार को बेचने से फायदा किसे हुआ है, टू बेनिफिटेड, ये उस कंपनी की जिम्मेदारी है ना। किसी ने पेटेंट लिया होगा, उसका उस पेटेंट को ऑथोराइज किया होगा किसी कंपनी को कि आप इस फॉर्मूला को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाएं और इसको बेचें, तो जो उससे लाभ कमा रहा है वो कंपनी, कार कंपनी, वो उसकी जिम्मेदारी होगी। और कार कंपनी फिर उसके ऊपर जिसका पेटेंट है उस सॉफ्टवेयर पे, उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकती है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जॉइंट नेग्लिजेंस भी हो सकता है कि आप लोगों ने मिलकर लोगों के साथ में खिलवाड़ किया। तो जो सॉफ्टवेयर का ओनर है, जो उसको यूज कर रहा है प्रेडोमिनेंटली, तो वो कार कंपनी, और उसके बाद में इनडायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी है जनरेटर की, जिसमें कि वो बनाइए। कंपनी के डायरेक्टर साहब रहते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am. Your discussions have scored the importance of understanding our rights and responsibilities and how these are intricately linked to our traditional practices and indigenous wisdom.
Thank you so much, ma'am. Your insight on constitution, traditional practice and intersection of constitution with AI has made all of us a big fan of you. A huge round of applause for respected ma'am and respected sir. I want to extend my heartfelt thanks to our speakers, facilitators, who shared their expertise and experience with us. Your passion and dedication have ignited a spark within us all. In closing, I encourage each of you to reflect on what you have learned and consider how you can apply it in your lives and communities by attempting a quiz. I repeat, in the closing, we are having a quiz which will be today as well as tomorrow. The final marks will be the average of the two. So this is not the end of the journey. We all will get gathered tomorrow sharp at 10 a.m. Thank you all. स्टूडेंट्स जितनी तालियां बजी हैं डॉक्टर शरीफ ज़िया और डॉक्टर सुषमा शर्मा के लिए, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हम उनकी तारीफ कर सकते हैं कि कितना अच्छा वक्तव्य दिया उन्होंने. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्पीकर्स. So now to test your grasp of this knowledge, as priorly told you, we have a quiz that is today as well as tomorrow. You have to attend the quiz. I am